بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ یہ کہانی کراچی شہر کی ہے۔ کراچی جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں کے کچھ لوگ بھی روشنی کی طرح اندھیرے مٹانے کا کام کرتے ہیں اور کچھ روشنی کو اندھیرے میں بدلنے کی فطرت رکھتے ہیں۔ خیر، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی کچھ مثبت اور کچھ منفی کرداروں سے مل کر بنی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں میرے ساتھ اس گھر میں جہاں سکینہ اماں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ ایک لوئر مڈل طبقہ ہے۔ یہاں گلیاں کچی اور مکان اکھڑے سیمنٹ والے کچے پکے بنے ہوئے۔ اس علاقے کے 80% لوگ ایک خوبصورت کشادہ گھر اور زندگی کی بنیادی سہولیات جیسے گیس، بجلی اور پانی کا خواب دل میں سجا کر جی رہے ہیں، اور باقی کے 20% لوگ وہ ہیں جنہیں حالات چاہے جیسے بھی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی بلا سے 24 گھنٹے بجلی غائب رہے یا پانی کی موٹر خالی چل چل کر تھک کر مر جائے، یا پھر سردی کے موسم کے علاوہ گرمی میں بھی گیس نہ آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سانول جو لوگوں کے اسے 20% لوگوں کے جیسی فطرت رکھتا تھا۔ وہ اماں سکینہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کی زندگی کا واحد سہارا۔ ایسا سہارا جس کے لیے اماں سکینہ نے جاگتی آنکھوں سے کئی خواب دیکھے تھے۔ اماں سکینہ نے بچپن سے ہی بڑے برے حالات دیکھے تھے۔ اس نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں مردوں کی اجارہ داری تھی۔ لڑکیوں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا تھا جس کی وہ حقدار ہوتی۔ زیادہ بیٹیاں ہونا بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی، اور اگر بیٹے زیادہ تعداد میں ہوتے تو اس بات کو اعلیٰ رتبے کی علامت اور لڑکوں کے ماں باپ کو قابل عزت سمجھا جاتا تھا۔ ان سے فیصلے اور مشورے لیے جاتے۔ سکینہ اپنے ماں باپ کی چوتھی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش کے 2 سال بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی بڑی بہن، 3 بہنوں اور دادی کی ذمہ داری بن گئی۔ کسی کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ ذرا بڑی ہوئی تو سب اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اسے آواز لگاتے اور وہ بوتل کے جن کی طرح فوراً حاضر ہو جایا کرتی۔ بچپن اسی طرح گزر گیا۔ لڑکیوں کے لیے دنیاوی تعلیم کا وہاں رواج نہیں تھا، مگر دوپہر ہوتے ہی محلے کے سب بچے اور بچیاں ہاتھوں میں سپارے اٹھائے محلے میں ایک نیک عورت کے پاس اس کے گھر کی بیٹھک میں پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ سکینہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اپنا سبق باقاعدگی سے یاد کرتی اور استانی کو ڈھونڈنے سے بھی اس کے سبق میں غلطی نہیں ملتی۔ جب اس نے ناظرہ مکمل کر لیا تو استانی جی نے اسے اپنے ساتھ مددگار کے طور پر رکھ لیا۔ وہ باجی کے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی سبق پڑھاتی اور بہت اچھا محسوس کرتی۔ مدرسے کی چھٹی ہونے کے بعد گھر آ کر جتنا ممکن ہوتا بڑی بہنوں کے ساتھ کام کرتی اور ان کا کہنا مانتی۔ بچپن اسی طرح رخصت ہو گیا۔ باری باری بڑی بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئی اور وہ اکیلی گھر کے کام کاج کے علاوہ باپ اور دادی کی خدمت کے لیے رہ گئی۔ دادی بوڑھی ضعیف ہو چکی تھی، کوئی کام کرنا تو دور کی بات، ان سے ہل کر پانی تک نہیں پیا جاتا تھا، اور سردی کے موسم میں تو ٹھنڈ کی وجہ سے ان سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے سکینہ اب مدرسے نہیں جاتی تھی، پوری طرح سے دادی اور گھر کی دیکھ بھال کا کام کرتی۔ وہ شدت سے اپنی بہنوں کا انتظار کرتی، مگر وہ سب اپنی زندگی کے جمیلوں میں گم ہو گئی تھی۔ اپنے بچوں اور سسرال والوں کے معاملات میں پڑھ کر تو شاید وہ بھول ہی گئی تھی کہ ان کی چھوٹی بہن بھی ہے جو 2 باتیں کرنے کی خواہش دل میں لیے ان کے آنے کے دن گنتی ہے۔ وہ مہینوں بعد تھوڑی دیر کے لیے آتی اور کچھ دیر بیٹھ کر اپنے دکھڑے سنا کر رخصت ہو جاتی۔ وہ بات کرنے کا ارمان دل میں ہی لیے رہ جاتی۔ دادی کو بہت کم سنائی دیتا تھا، کوئی کام کی بات بھی 3-4 بار اتنی تیز آواز میں کہنی پڑتی کہ محلے والے بھی ساری بات سمجھ جاتے۔ ایک روز دادی کا کمزور وجود بھی منو مٹی تلے جا سویا اور وہ روتی تڑپتی رہ گئی۔ کچھ ہی دنوں میں بہنیں بھی جو تعزیت کے لیے آئی تھی باری باری اپنے گھر چلی گئی، اور ابا نے بھی اپنے کام پر جانا شروع کر دیا۔ وہ گھر میں اکیلی بولائی پھرتی۔ اب محلے والوں اور رشتہ داروں نے اعتراض شروع کر دیا تھا کہ جوان جہان لڑکی کا گھر میں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ رشید یعنی سکینہ کا ابا دوسری شادی کرے یا پھر سکینہ کی شادی کر دی جائے۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس بات کو ہی مسئلہ بنا کر رشید کے خلاف ہوتے، اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ جلدی اپنے محلے کی ایک رشتے کروانے والی عورت زیتون کی مدد سے رشتہ تلاش کیا۔ سکینہ کی نئی اماں نے گھر میں قدم رکھا تو گھر کو صرف اپنی ملکیت سمجھا۔
اس کی نظر میں سکینہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہانڈی چولہا سکینہ نے سنبھال لیا تھا اور جھاڑو برتن سکینہ کی ذمہ داری تھی۔ کپڑے بھی سکینہ ہی دھوتی۔ کھانے پینے کی چیزوں پر اس کی سوتیلی ماں کا قبضہ تھا۔ محلے والے اور سکینہ کی بہنیں یہی سوچتی کہ وہ ایک اچھی عورت ہے جس نے گھر میں آتے ہی چولہا سنبھال لیا، جبکہ اس کی چالاکی سے صرف سکینہ واقف تھی۔ وہ بوٹیاں خود کھا کر آلو والا شوربہ سکینہ کے لیے چھوڑ دیتی اور جان بوجھ کر روٹی کم بناتی، جس کی وجہ سے پیٹ بھر کر کھانا سکینہ کے لیے مشکل ہو جاتا، مگر وہ اسی میں خوش تھی اور کچھ کہہ کر گھر کا ماحول نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے کبھی کسی کے سامنے ماں کی برائی نہیں کی تھی۔ وہ ایک صبر کرنے والی لڑکی تھی۔ رضا اکثر اپنی خالہ کے گھر آتا جاتا رہتا۔ اسے کم بولنے والی اور زیادہ سوچنے والی سکینہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر سکینہ کی ماں رمشا کو نکمے اور آوارہ بھانجے رضا کے لیے سکینہ بے حد مناسب لگتی تھی۔ اس کی بہن فرہندہ نے مرنے سے پہلے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اس کا آخری سب سے چھوٹا سپوت اب اپنی خالہ رمشا کی ذمہ داری ہے۔ بڑے بھائی تو اپنی شادی کروا کر ایک طرف ہو گئے تھے، کسی کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ فکر ہوتی بھی کیوں، نہ وہ کوئی کام کرتا تھا اور نہ ہی بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل تھا۔ سبھی بھائی بھابھی اس بات سے اچھی طرح واقف تھے، کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر پرواہ تھی تو وہ رمشا تھی، جسے صرف بہن سے کیا وعدہ نبھانا تھا اور اپنی بہن کے پرانے احسانوں کا قرض اتارنا تھا جو اس نے رمشا کے بیوہ ہونے پر اپنے گھر رکھ کر اور رشید سے نکاح پڑھوا کر کیے تھے۔ اس کی فطرت تھی کہ جو بات ایک بار دماغ میں سما جاتی، جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتی سکون سے نہیں بیٹھتی۔ اجی میں کہتی ہوں اپنا رضا سکینہ کے لیے کیسا رہے گا؟ اچھا دیکھا بالا بچہ ہے۔ ایک رات جب رشید کام سے اگر کھانا کھا رہا تھا، رمشا نے موقع دیکھ کر بات کہہ دی۔ رشید سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، بات تو تیری ٹھیک ہے، سکینہ کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس عمر میں بڑی تینوں اپنے گھر بار کی ہو گئی تھی۔ ان کی وقت پر شادی اماں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہم تو شاید ان کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہی نہیں۔ رشید رنجیدہ سا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی بچی کی اسی ہفتے بعد پکی کر کے دکھاؤں گی۔ رمشا نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کی۔ رشید شکر گزار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ رمشا نے اپنے کہے کو سچ کر دکھایا اور اگلے ہی مہینے تھوڑا سا سامان دیکھ کر سکینہ کو رضا کے ساتھ رخصت کر دیا۔ رضا کے تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا تو رضا کے حصے میں بھی چھوٹا سا گھر آ گیا، جس میں سکینہ دلہن بن کر گئی تھی۔ اس کی بہنیں اور محلے والیاں سب اس کی قسمت پر ناز کر رہی تھی کہ لمبے چوڑے سسرال کا کوئی جھنجٹ ہی نہیں، شوہر کے بہن بھائی سب گھروں میں آباد، سکینہ اپنے گھر میں جیسا چاہے رہے۔ لوگ رمشا کی تعریف کرتے نہ تھکتے، جس نے سوتیلی ماں ہونے کے باوجود بیٹی کے لیے اتنا اچھا سوچا۔ خیر ہوا یہ کہ رضا شادی سے پہلے آوارہ گرد اور غیر ذمہ دار تھا۔ شادی کے بعد ایک فیکٹری میں مستقل طور پر کام کرنے لگا اور مہینے کے آخر میں ساری تنخواہ لا کر سکینہ کے ہاتھ پر رکھتا۔ وہ گھر چلاتی اور کچھ پیسے بچا کر بھی رکھتی۔ سکینہ اپنے گھر میں خوش اور آباد زندگی گزار رہی تھی۔ رضا بھی اس سے بہت خوش تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تو انہیں ایسے محسوس ہوا گویا دنیا میں ہی وہ جنت میں رہ رہے ہوں۔ رضا نے بیٹے کا نام سانول رکھا۔ اس کی پیدائش کی خوشی میں مٹھائی بانٹی اور سب رشتہ داروں کی دعوت کی۔ سبھی لوگ سانولی سلونی سکینہ کی قسمت پر ناز کرتے تھے، جسے چاہنے والا شوہر اور چاند سا بیٹا ملے۔ زندگی کی انہی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ زندگی کی یہ خوشیاں اتنی مختصر ثابت ہوں گی، یہ سکینہ نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک روز رضا کام پر گیا تو 4 کندھوں پر واپس آیا۔ اس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کی جان نہیں بچ سکی۔ سکینہ کی تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ لوگ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے، مگر وہ چیختی چلاتی پھر سے ہوش سے بیگانہ ہو جاتی۔ جب اسے ہوش آیا تو رضا منو مٹی تلے جا سویا۔ ساری دنیا اسے طرز بھری نگاہوں سے دیکھتی اور جوانی میں بیوہ ہونے پر افسوس کرتی۔ شروع دن میں لوگوں نے بیوہ سمجھ کر اس کی مدد وغیرہ کی، مگر سفید پوش گھرانوں میں جہاں اپنا دال دلیا چلانا مشکل ہوتا، کوئی کیسے مستقل طور پر کسی کی ذمہ داری اٹھا سکتا؟ سکینہ کو بھی بہت جلد محنت مزدوری کی طرف آنا پڑا۔ وہ دن رات لوگوں کے کپڑے سیتی اور اس سے ملنے والی اجرت سے گزارا کرتی۔ وہ سانول کو اچھی تعلیم دلانا چاہتی تھی اور جو خواب ان دونوں میاں بیوی نے مل کر سانول کے لیے دیکھے تھے،
उन सभी ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। ये सब मेहनत करने से मुमकिन था, सो वो दिन रात मेहनत करती और सांवल की हर ज़रूरत को पूरा करती। सांवल बड़ा हुआ तो उसने उसको स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो स्कूल जाता तो उसे पढ़ता देखकर बड़ी खुशी होती। वो सुबह सांवल को स्कूल भेजने के बाद दोपहर तक सिलाई का काम करती और फिर दोपहर को बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती। उसने अपनी ज़िंदगी को नेक कामों के लिए वक्फ कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, वो इंसानों की खिदमत को अपना अव्वलीन फ़र्ज समझती थी। जिस भी जगह कोई परेशानी होती वहाँ अपना किरदार अदा करने के लिए ज़रूर जाती। लोग दूर से उसे दम करवाने के लिए आते और खुसूसी तौर पर दुआ की दरख्वास्त की जाती। सांवल बड़ा हुआ तो सकीना को पहली बार शोहर की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होने लगी। जवान औलाद को ज़माने की ऊंच नीच सिखाना अकेली माँ की जिम्मेदारी नहीं होती। ये बात सकीना को उस रोज़ समझ आ गई थी जिस रोज़ सांवल पहली बार सिगरेट हाथ में पकड़े घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर सकीना का सर चकराया और अपने सारे ख्वाब मिट्टी में मिलते मालूम हुए। उसे अपनी मेहनत का ऐसा सिला मिलने वाला था, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कुछ ही देर में उसने खुद को संभाला और उसके करीब आकर प्यार से उसे समझाने लगी, मेरे पुत्र, ये चीज़ सेहत की दुश्मन है, इससे दूर हो जा। तुझे तेरे प्यार का वास्ता मेरे वीर। सकीना का अंदाज मिन्नत भरा था। क्या है माँ, क्या मैं अब अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता? सांवल ने नागवारी से कहा तो सकीना दुपट्टे में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। क्यों रोती है मेरी प्यारी माँ? सांवल सिगरेट फेंक कर खुशामद करने लगा। मत बोल मुझे माँ। सकीना ने उसका हाथ झटका और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। माँ, मैं तो सिर्फ तुझे ये एहसास दिला रहा था कि तेरा लाडला बड़ा हो गया है। खैर से काम भी करने लग जाऊंगा बहुत जल्द, बस तू सेहरे के फूल खिलाने की फिक्र कर अब। सकीना उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। तुझे जरूर किसी चुड़ैल ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी, सकीना ने गुस्से से कहा। तो सांवल बोल पड़ा, ऐसे मत कह माँ, नौरीन तेरी होने वाली बहू है और मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। उसने सख्त लहजे में कहकर बात ही ख़त्म कर दी। कल उसके घर रिश्ते के लिए चलना, मैं शाम में मिठाई ले आऊँगा। वो आदमी अंदाज में कहकर सोने के लिए चला गया और सकीना की नींदें हराम कर गया। उसने अपने अकलौते बेटे के लिए क्या क्या ख्वाब नहीं सजाए थे। चांद से दुल्हन ढूंढने का अरमान दिल में ही रह गया। नौरीन को वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इस मोहल्ले में गली के आखिरी कोने में 2 पट का छोटा सा दरवाज़ा नौरीन का ही था। वो 2 छोटे भाई और एक बहन और माँ के साथ रहती थी। माँ बाप में अलहदगी हो चुकी थी। उसकी वजह नौरीन की माँ फरहाना की हर काम में बिला वजह चालाकी दिखाने की आदत और वक्त बेवक्त झगड़ा करना था। इत्तफाकियत तौर पर उसकी दोनों बेटियां माँ का साया थी और लड़ने झगड़ने के मामले में तो अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे थी। उन्हें अपने बनाव सिंगार का खासा शौक था, तभी बन ठन कर सांवल के दिल पर वार करने में कामयाब हो गई थी। अगले दिन सकीना बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर और कुछ सोच कर कि वो मोहब्बत में पागल होकर कोई गलत कदम न उठा ले, रिश्ते के लिए मिठाई उठाए नूरीन के घर चल दी। नूरीन की माँ तो जैसे रिश्ते के इंतज़ार में ही थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि वो अपने होने वाले दामाद के साथ सारे मामलात तय कर चुकी थी। सो फौरन हाँ में जवाब देकर एक तरह से बात पक्की कर दी। सकीना के दिल में रिश्ते से इनकार होने की जो ज़रा सी उम्मीद थी वो भी दम तोड़ गई और वो घर आकर बहुत कम ज़दा हुई, मगर फिर खुद ही दिल को समझाया कि बेटे की नई ज़िंदगी की शुरुआत में रौंदा डालना अच्छी बात नहीं, बुरा शगुन है। अगले दिन उसने ढेर सारी मिठाई मंगवाई और सारे रिश्तेदारों और पूरे मोहल्ले में बांटी। नूरीन की माँ ने ये बात पक्की होने की दावत की तो उसने नूरीन के लिए महंगे कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, हर चीज़ खरीदी और मिठाई के टोकरे के साथ अपनी बहनों और माँ को साथ लेकर बड़ी खुशी से गई। नूरीन खुशी के मारे हवाओं में उड़ती फिर रही थी और अपनी जीत का जश्न मना रही थी। खैर वो दिन ख़त्म हुआ और सकीना उस रिश्ते पर समझौता करके और सब्र के घूंट भर कर फिर से अपनी मसरूफियात में खो गई। सांवल ने नूरीन और उसकी माँ के दबाव में आकर शादी के लिए रट लगा रखी थी। सकीना बरी की तैयारियों में लग गई, हर चीज़ आला मेयार और खूबसूरत बनाई। जो भी देखता सकीना की पसंद की दाद दिए बगैर न रहता। नूरीन का जब जी चाहता मुंह उठाकर ससुराल आ जाती। यही नहीं, हर मामले में अपनी टांग अड़ाकर उस घर पर अपनी मिल्कियत जाहिर करती। कभी कभी सकीना को बहुत बुरा लगता, मगर वो खामोश रहती। उसे कुछ कहकर वो सांवल का दिल नहीं ख़राब करना चाहती थी। बेचारी इस बात से तो बिल्कुल बेखबर थी कि बहुत जल्द उसका वही हाल होने वाला है
जो बाप के घर सौतेली माँ की मौजूदगी में था। खैर, एक दिन तो उसने हद ही कर दी। दोपहर का वक्त था। अम्मा सकीना के पास पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों के आने का वक्त हो गया था। उसी वक्त नूरीन भी बड़े धड़ल्ले से अपने होने वाले ससुराल में मटर गश्त करने के लिए आ गई और बड़े मज़े से बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। अम्मा, ये क्या तुम हर रोज़ घर में बच्चों का रश लगाए रखती हो? देखो, मैं पहले ही बता रही हूँ, हमारी शादी के बाद इस घर में ये बच्चों का शोर हंगामा नहीं चलेगा। सकीना उसकी बात पर अभी हैरान हो रही थी कि वो मज़ीद बोली, मैंने तो सावल से कह दिया है कि मैं दोपहर के वक्त इस घर में शोर शराबा पसंद नहीं करूँगी। यही तो वक्त होता है दिन के वक्त सुकून करने का। इसी वक्त में ये बच्चे आ जाएंगे तो मैं कहाँ सोऊंगी? किस वक्त सोऊंगी? सोने के लिए पूरे 10 घंटे की रात कम नहीं होती। फिर भी अगर दिन में सोने के चाव ससुराल आकर ही पूरे करने तो ठीक है मेरी बच्ची। मैं सावल को कह दूंगी कि तेरे लिए कोई बेहतर ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि बच्चे तो रोज आएंगे, उनको तो रोक नहीं सकती। सकीना ने बच्चों की अम्मा सकीना होने का ऐसा खरी खरी सुनाकर सबूत दिया कि नूरीन अपना सा मुंह लेकर रह गई। कुछ ही देर में अपनी बेइज्जती करवा कर चलती बनी। दरअसल वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इस मामले में कुछ कहा तो अम्मा सकीना शादी के बाद घर से बाहर का रास्ता दिखा देगी, और सावल माली तौर पर इतना मजबूत नहीं है कि उसके लिए अलग घर का बंदोबस्त कर सकता। सो खामोश रहने में याफियत समझी। अम्मा सकीना ने शादी पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल खोल कर जमा पूंजी खर्च की। छोटा कमरा अपने इस्तेमाल में लेकर बड़े कमरे में बहू का सामान सेट करवा दिया। शादी के बाद नूरीन अपनी मर्जी से सोती जागती और घर का कोई काम ना करती, मगर कभी सकीना ने यह सोचकर कोई नोटिस नहीं लिया कि आखिर पहले भी वो खुद अकेले ही काम निपटाती थी। अब अगर कर लेगी तो कोई बात नहीं। सावल ने भी तो कभी बीवी को समझाने की कोशिश नहीं की कि उसे माँ का हाथ बटाना चाहिए। सावल की नौकरी लगी तो नूरीन हर चीज़ अपने कब्जे में करने की कोशिश करने लगी और सकीना को बात बेबात टोकती रहती, और उसका किया हुआ कोई काम उसे पसंद नहीं आता था। हर काम में 1000 नुक्स पेश कर देती। सावल सुबह का घर से निकला, रात को वापस लौटता तो अम्मा सकीना उसे कोई शिकायत लगाकर परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्हीं दिनों नूरीन को माँ बनने की खुशखबरी मिली तो खुद को आसमान से उतरी शेर समझने लगी। सावल और सकीना बेहद खुश थे, और इसी खुशी की वजह से अम्मा सकीना उसका बुरा रवैया भी हंस कर टाल रही थी। वैसे भी अब तक तो वो उसकी बुरी फितरत की आदी हो ही गई थी। सावल और सकीना उसका बड़ा ख्याल रखते। अम्मा सकीना हर रोज़ घर में उसकी पसंद का खाना बनाती और सबसे पहले उसको निकाल कर पेश करती। एक रोज़ फरहाना बेटी की तरफ आई तो नूरीन आदत के मुताबिक रिमोट हाथ में पकड़े टीवी के आगे पड़ी थी, और सकीना बर्तन धोकर सिलाई कर रही थी। नूरी, तो इस बुढ़िया से इसकी कमाई का हिसाब मांगेगी कि नहीं? फरहाना ने उसके कान में कहा तो वह हंस पड़ी। लो जी, कर लो गल। माना कि मैं बेशर्म हूँ, मगर इतनी भी नहीं कि उससे उसकी कमाई का हिसाब किताब करूँ। वैसे भी अभी वो इस घर में ही खर्च करती है, मालूम है मुझे। उसके जवाब पर फरहाना सर पीट कर रह गई। हमेशा झल रही रहना तू, वो तो मुझे भी मालूम है कि वो घर पर ही खर्च करती होगी, मगर पागल लड़की, भरम बनाना भी कोई चीज़ होती है। इस घर में तूने अपने पाँव मजबूत करने हैं और मालकिन बनना है। तो लिख ले मेरी बात, जब तक हर चीज़ पर सांप की तरह मालिक बनकर नहीं बैठेगी तो मालकिन बन ही नहीं सकती। मेरी बच्ची, ये बुढ़िया मुझे आगे खिसकती हुई नजर नहीं आ रही। कुछ लोग होते हैं जो ढीठ होते हैं, ना मरते ना जान छोड़ते। ये भी मुझे ऐसी ही लगती है। अगर बच्चा होने के बाद इस घर में अपनी हुक्मरानी चाहती है तो अभी से खेल शुरू कर। खाली खुली एक कान से सुनकर मेरी बातों को दूसरे कान से ना उड़ा, बल्कि इस टीवी शीवी को छोड़कर आज ही अमल भी कर। इतनी लंबी चौड़ी नसीहत से नूरी बहुत कुछ समझ गई थी, सो सोचने पर मजबूर हो गई थी। बात तो तेरी 100% दुरुस्त है माँ, मुझे करना क्या चाहिए? वो माँ से पूछने लगी। अब आई ना लाइन पर? फरहाना हंसकर बोली और उसे समझाने लगी। तो इस बुढ़िया को किसी भी तरह कोने से लगाने की कोशिश शुरू कर दे। पूरे घर पर अपनी हुकूमत चला और साथ साथ घर के काम भी किया कर, ताकि इस बुढ़िया का पत्ता साफ हो और पूरे घर में सिर्फ तेरी इजारादारी हो। माँ ने तफसील से समझाया तो नूरीन की मोटी अक्ल में बात समा गई। अगले दिन सुबह के वक्त नूरीन को नाश्ता बनाते देखकर सकीना बहुत खुश हुई।
اور دل سے اس کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ چلو اچھا ہے، نورین کو ذرا دیر سے ہی صحیح لیکن گھرداری کی فکر ہوئی، وہ ذمہ داری نبھانے لگی ہے۔ ابھی وہ خوش فہمی کے سمندر میں ہی تیر رہی تھی کہ نورین نے اس کے آگے ناشتے کی ٹرے رکھی۔ آدھا پراٹھے کا ٹکڑا اور آدھی پیالی چائے دیکھ کر سکینہ کو آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ اتنی تنگ دل نہ وہ خود تھی اور نہ ہی اسے اتنی تنگ دلی کی اس سے امید تھی۔ پھر اس نے یہ سوچ کر اسی پر گزارا کر لیا کہ ہو سکتا ہے نورین اتنے عرصے بعد چولہے کے آگے بیٹھ کر تھک گئی ہو۔ اس نے کچھ کہہ کر پہلے دن ہی کوئی بدمزگی پیدا کرنے کے خیال سے خاموشی ساتھ لی۔ نورین نے ساس کو صبر سے کھانا کھاتے دیکھ کر دل ہی دل میں اپنی پہلی جیت کا جشن منایا اور ناشتے سے فارغ ہو کر یہ بات ماں کو بتانے کے لیے چل پڑی۔ ماں بیٹی کو دیکھ کر خود بھی خوش ہو گئی اور اسے مزید کامیابی کے گر سکھانے لگی۔ نورین اپنی ماں کو عقل مند سمجھتے ہوئے اس کی ہر نصیحت کو پلو میں باندھ رہی تھی، اور دوسری طرف اماں سکینہ ان فتنہ پرور ماں بیٹی کی ہر چال سے بے خبر گھر گھر سلائی مشین چلا رہی تھی۔ سکینہ گھر میں نئے مہمان کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اس کے لیے بہت سارے کپڑے بھی سی لیے تھے۔ نورین پر ماں کی پڑھائی پٹیوں کا ایسا اثر تھا کہ کبھی بھی ساس کی محبت اسے نظر نہیں آئی، الٹا وہ اس کی محبت کو دکھاوا سمجھتی۔ ایک شام جب سکینہ کو پوتی کا تحفہ ملا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے بچی کو گلے لگایا اور خوشی کے مارے اس کے آنسو نکل گئے۔ کیا ہے ماں، اس خوشی کے موقع پر آنسو کیوں بہا رہی ہے؟ اچھا شگن نہیں ہوتا؟ نورین نے ٹوکا تو ساول نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور نورین کے کہنے پر بیٹی کو ماں کی گود سے لے لیا۔ سکینہ کی خوشی کے آنسو دکھ میں بدل گئے۔ کیسے اس نے دن گن گن کر گزارے تھے اور سخت بے چینی سے اس دن کا انتظار کیا تھا، مگر ان دونوں کی نظر میں اس کی محبت کی کوئی قدر ہی نہیں تھی۔ آنسو تھے کہ اس کی آنکھوں سے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ساول کی تنخواہ بڑھ گئی تھی۔ نورین نے اپنی اخراجات بھی بڑھا لیے اور آئے روز ماں کے ساتھ جا کر اپنی اور بیٹی کے لیے شاپنگ کرتی۔ سکینہ کے لیے کچھ لے کر آنا تو دور کی بات، اپنی شاپنگ تک دکھانا پسند نہیں کرتی تھی۔ کچھ دن کے لیے سکینہ کی بہن روزینہ دوسرے شہر سے اس کے پاس رکنے کے لیے آئی تو گھر میں اپنی بیوہ بہن کی حالت دیکھ کر وہ بہت غمزدہ ہوئی۔ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کا کہنے لگی۔ سکینہ نے صاف منع کر دیا۔ وہ اپنے آرام سے زیادہ ان بچوں کی پڑھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ہر روز اس کے پاس علم کی روشنی حاصل کرنے کی امید لیے آتے۔ وہ ان کے لیے ہرگز یہ در بند نہیں کرنا چاہتی تھی۔ روزینہ اس کے لیے خیر کی دعائیں مانگتی اور بہو بیٹے کو ہدایت ملنے کی دعا کرتی۔ وہ واپس اپنے گھر چلی گئی اور دن اسی پرانی ڈگر پر چلنے لگے۔ نورین کی وہی روٹین تھی، بلا وجہ محاذ کھڑا کیے رکھنا، آتے جاتے ساس کو الٹی سیدھی باتیں کہنا جس سے اس کا دل جلتا۔ ایک روز سکینہ سے ملنے کچھ مہمان خواتین آئی۔ وہ خواتین مکمل پردے میں تھی۔ ان کے ساتھ ایک بیمار بچہ تھا۔ ان کے انداز میں ایک عجیب سا روب تھا، دکھنے سے بے حد امیر لگتی تھی۔ نورین نے دیکھا تو بڑبڑا کر رہ گئی، چلاک بڑھیا، نہ جانے کتنے لوگوں سے تعلقات بنا رکھے ہیں، ضرور اندر ہی اندر بہت ساری دولت بھی سمیٹ رکھی ہوگی، مگر نہ یہ مرے گی اور نہ ہی ہمیں دولت نصیب ہوگی۔ لگتا ہے ساری عمر اسے 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں ہی کٹ جائے گی۔ دروازہ کھلا تھا، وہ دونوں اجنبی عورتیں چلتی ہوئی سیدھا سکینہ کے کمرے میں گئی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا اور پڑھنے کے لیے آنے والے بچوں کی چھٹی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سکینہ فرصت کے لمحات میں مشین پر پوتی کی فراق سینے میں مصروف تھی۔ وہ اپنے سامنے ان قیمتی لباس میں ملبوس امیر عورتوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے بڑے ادب سے سکینہ کو جھک کر سلام کیا اور اس کی پرانی ٹوٹی چارپائی پر بڑے ادب سے بیٹھ گئی۔ ہمارا یہ بچہ بیمار ہے، ہم اسے دم کروانے کے لیے لے کر آئے ہیں، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ سکینہ نے بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مرض کی نوعیت جاننا چاہی۔ وہ تو حیران رہ گئی۔ وہ بچہ جنات کی قوم سے تھا۔ اسے حیرت ضرور ہوئی مگر اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ اس نے اپنے طریقے کے مطابق اپنی ہتھیلی بچے کی پیشانی پر رکھ کر دم کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس کا دم مکمل ہوا، بچے کے بخار کی شدت کم ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر واضح طور پر سکون محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ اماں سکینہ،
उनमें से एक औरत ने सकीना का शुक्रिया अदा किया और अपने हाथ में से जगमग करता हुआ एक सोने का कंगन निकालकर सकीना की तरफ बढ़ाया। ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। अम्मा सकीना इतना कीमती कंगन देखकर हैरान हुई, मगर इससे बढ़कर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि कोई उसे इतने प्यार और मान से तोहफा भी दे सकता है। वो मुस्कुराई और इनकार में सर हिलाकर बोली, बेटा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और सच बात तो ये है कि ये तुम्हारे हाथ में ही सज रहा है। मैंने कभी इतनी कीमती चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ना ही मुझ बूढ़ी जान पर जचती हैं। सकीना के आजिज़ी से कहने पर दूसरी औरत मुस्कुराई और बोली, क्या आप चाहोगी कि आप अपने मेहमानों का नजराना कबूल ना करके उन्हें रुसवा करो? इतनी धीमी आवाज़ और शाइस्ता अंदाज से शिकवा था कि सकीना मज़ीद इनकार नहीं कर सकी। वो लोग वहाँ से गईं तो सकीना को ऐसे महसूस हुआ जैसे हवा का तेज़ झोंका गुजरा हो। नूरीन तजस्सुस के मारे कमरे से बाहर निकली। इससे पहले कि सास से कुछ पूछती, उसे बड़ी शिद्दत की एक के बाद एक छींकें आने लगी। वो छींक छींक कर अधमुई हो गई और भूल ही गई कि किस काम से उधर आई थी। उसकी छींकें रुकी तो छोटी नींद से जाकर बुरी तरह से रो रही थी। उसने भागकर जाकर बेटी को उठाकर गले लगाया और उसे चुप करवाने लगी। सकीना ने सोने का कंगन अपने तकिए के गिलाफ में छुपा दिया ताकि नूरीन उसके बारे में न जान सके। उस दिन के बाद से ऐसा होने लगा कि जैसे ही नूरीन अम्मा सकीना के साथ कोई पंगा करती या किसी भी तरह से तंग करती, उसे यूं ही छींकों का दौरा पड़ जाता, या कभी वो गिर जाती और उसे चोट लग जाती। वो औरतें दोबारा आई थी और अपने बच्चों को अम्मा सकीना के यहाँ कुरान पढ़ने के लिए बिठा दिया। उनके बच्चे बेहद हसीन थे, मोटी और बड़ी सी भूरी आंखें, सुनहरी बालों वाले ये बच्चे निहायत खूबसूरत थे। कोई एक बार उन्हें देखता तो नज़र हटाना मुश्किल हो जाता। अम्मा सकीना के अलावा उनकी हकीकत को कोई नहीं जानता था। वो दूसरे बच्चों से बात नहीं करते थे और सकीना के अलावा किसी भी इंसान से साफ कतराते थे। आम इंसानी बच्चों की निस्बत उन्हें बहुत कम वक्त में सबक याद हो जाता था। उसकी एक वजह यह भी थी कि वो बच्चे शरारतें नहीं करते थे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देते। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल सीधे साधे और भोले भाले बच्चे थे, बस उन्हें वहाँ शरारत करने से सख्ती से मना किया गया था और उनके जहन में तालीमी दरसगाह की अहमियत इस अंदाज में बिठाई गई थी कि वो पूरी दिल जमी से अपनी पढ़ाई करते, अपने मखसूस वक्त पर वहाँ पढ़ने के लिए आते और सब बच्चों के चले जाने के काफ़ी देर बाद जब अंधेरा फैल जाता तो उस वक्त वहाँ से निकल जाते। कोई नहीं जानता था कि वो किस जगह से आते हैं। अम्मा सकीना ने भी कभी ये बात जानने की या उनकी टोह में रहने की कोशिश नहीं की थी। आजकल नूरीन ने नई जिद पकड़ ली थी। वो सावल से अलग घर की फरमाइश कर रही थी। पहले पहल सावल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और जब अपनी हर कोशिश को नाकाम पाया तो कर्ज लेने के लिए कोशिशें करने लगा। इतने अरसे में वो नूरीन की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हो गया था कि वो जानबूझकर एक न एक मुतालबा किए रखती थी। मकसद सिर्फ अपनी अहमियत का एहसास दिलाना था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो अपनी जिद के पीछे नहीं हटेगी। नूरीन के लिए अलग घर के लिए सब्र करना मुश्किल हो गया था, सो वो नाराज होकर मैके चली गई और साफ कह दिया कि उसी सूरत वापस आएगी जब नए घर का इंतज़ाम हो जाएगा। सावर ने अपने दोस्त से कर्ज लेकर एक मकान का एडवांस जमा करवाया और माँ के आगे शर्मिंदा सा होकर अपना सामान उठाए किराए के घर में शिफ्ट हो गया। हर महीने किराया देने की फिक्र उसके होश उड़ा रही थी, क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वह हर माह किराए के लिए माकूल रकम अदा करता। अम्मा सकीना बेटे के जाने के बाद उदास रहने लगी थी और पोती की याद में अक्सर बैठे बैठे रो पड़ती। उन हालात में जिन्नात के बच्चों ने अम्मा सकीना का बड़ा साथ निभाया। वो अक्सर देर तक खेलते रहते और कभी अपने उस्तानी के लिए मज़े मज़े की चीज़ें भी लेकर आते। अब तो सकीना उनकी लाई हुई चॉकलेट और मीठी गोलियां खाने की इतनी आदी हो गई थी कि उसकी सिलाई मशीन की दराज में यही चीज़ें रखी होती थी। एक रोज़ अम्मा सकीना को बुखार था। इत्तफाक से उस रोज़ जुम्मा था। बच्चों को छुट्टी होने की वजह से वो घर में अकेली उदास पड़ी थी। वो अपने गुजरे वक्त, खास तौर पर शोहर के साथ गुजरे दिनों को याद कर रही थी। जवानी के दिन भी कैसे खूबसूरत दिन होते हैं, इस बात का एहसास बढ़ापे में होता है। सारी उम्र इंसान दौलत के पीछे लालची बनकर गुजार देता है, मगर बढ़ापे में मालूम होता है कि असल दौलत तो उसकी सेहत थी।
जिसे वो वक्त के दरिया में बहता हुआ गंवा आया था। खैर, इस दौलत से हर इंसान को ही हाथ धोने पड़ते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, बदफितरत हो या नेक फितरत, बेवकूफ़ हो या अक्लमंद। अम्मा सकीना बुखार में झुलसते हुए ठंड से कांपते यही बातें सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठकर दरवाज़ा खोलने की हिम्मत करने लगी, मगर उठने में नाकाम रही। बुखार और कमज़ोरी की वजह से उसे बिस्तर से हिलना मुश्किल हो रहा था। उठकर दरवाज़ा खोलना तो दूर की बात थी, वो बेचारी मफलूज से बिस्तर पर पड़ी थी। दस्तक की आवाज़ सुनती रही। झुर्रियों भरे चेहरे पर उदासी और ज़माने भर के दुख लिखे हुए थे। तन्हाई और अपनों के बिछड़ जाने का गम उसके चेहरे पर बहुत नुमाया था। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि कब नींद का झोंका आया और अम्मा सकीना को नींद की वादी में ले गया। वो बेखबर सो गई। कुछ ही देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने अपनी पेशानी पर 2 नन्हे हाथों का लम्स महसूस किया। उसे अच्छी तरह याद था कि वो घर में अकेली थी। सो आंखें खोलकर देखा तो जिन्नात के 2 बच्चों को अपने करीब खड़ा पाकर, अपना सर दबाता पाकर उसे बेख्तियार उस मखलूक पर प्यार आया। अम्मा सकीना उठ गई। उसे आंखें खोलता पाकर एक बच्चे ने खुश होकर कहा। दूसरे बच्चे ने अपने हाथ से उसे इतना लजीज सूप पिलाया कि उसके मैदे में उतरते ही अम्मा सकीना को अपने अंदर तवानाई दौड़ती महसूस हुई। कुछ वो सुबह से भूखी लेटी थी, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना कुछ बनाने की हिम्मत थी। उस वक्त बुखार से ज़्यादा भूख सता रही थी। सो जिस्म में ताकत महसूस हुई तो सकीना ने आंखें खोलकर उन बच्चों को प्यार किया, शाबाशी दी और उनके माँ बाप की तरबियत की तारीफ करते हुए उन्हें ढेरों ढेर दुआएं दी, जिन्होंने ऐसी नेक औलाद की नेक तरबियत की थी। इस दुआ के साथ ही उसे अपने सावल की याद सताई, जो अपनी माँ के घर का रास्ता जैसे भूल ही गया था। सकीना उसकी राह देखती बीमार पड़ गई थी, मगर वो अपनी ज़िंदगी के झमेलों में ऐसा गुम हुआ कि पलटकर माँ की खबर तक लेना याद नहीं रहा। नूरीन के घर से अलग घर का भूत उस वक्त उतरा जब बिजली और गैस का बिल मुँह चढ़ाता मिला। तो उसे याद आया कि ये 2 चीज़ें भी दुनिया में पाई जाती हैं, जिसे अम्मा सकीना बगैर बताए और बगैर जिताए हर महीने भरवा देती थी। उसने टीवी देखना छोड़ दिया था, मगर फिर भी बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया कि उसे देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। सावल सर पकड़कर बैठ गया। आधी तनख्वाह तो मकान के किराए में चली गई थी, बाकी आधी गैस बिजली के बिल में चली जाती तो पूरा महीना क्या खाकर गुजारा करते। कर्ज पहले ही चढ़ा हुआ था, मज़ीद लेने का क्या सोचते। थक हार कर उन्होंने नूरीन के मैके जाकर रहने का फैसला किया। नूरीन ने माँ से पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी खैरख्वाह माँ उसे कभी इनकार नहीं कर सकती। जान लुटाने वाली बहनें उसे देखकर बहुत खुश होंगी। माँ के घर जाने की बात तय होने की देर थी कि नूरीन ने झटपट सामान बांधा और दोनों नूरीन के मैके जाने के लिए तैयार हो गए। नूरीन खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस रोज से किराए के घर में आई थी सुख का एक दिन भी नहीं देखा। कभी दूध खत्म होने की फिक्र तो कभी आटा और चीनी खत्म होने जैसी फिक्रात जान ही न छोड़ती। सावल जो कभी जान लुटाने वाला शोहर हुआ करता था, अब खर्चे की बात सुनता तो हत्थे से ही उखड़ जाता। और दोनों की ऐसी लड़ाई शुरू हुई कि मोहल्ले वालों की घर बैठे उनके दंगे फसादों की आवाज़ से अच्छी खासी तफरी हो जाती। सब माँ के घर सुकून के दिन देखने का ख्याल ही बड़ा खूबसूरत था। नूरीन ने माँ के घर के सामने आकर सुकून भरी सांस खारिज की। सावल का मूड भी खराब था, मगर परवाह किसे थी। दरवाज़ा नूरीन की छोटी बहन ने खोला। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो सामने ही नूरीन की माँ बैठी सब्जी साफ कर रही थी। बेटी और दामाद को यूं साजो सामान समेत घर के अंदर आते देखकर उसे हार्ट अटैक होते बचा। कुछ पल वो हैरत से मुंह खोले उन्हें देखती रही, फिर संभल कर बोली, आज कैसे रास्ता भूल गए हो? सावल ने ये साफ महसूस किया था कि सावल की सासू माँ ने यह जुमला रस्मन कहा था, और उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं। उसका सर शर्म से झुक गया। उनका बिस्तर छोटी सी बैठक में लगा दिया गया। वो सास जो उनके आने पर कम से कम आलू गोश्त जरूर बनाती थी, आज ऐसी कोई जहमत नहीं की। खाने के बाद चाय बनाने का भी तकल्लुफ जरूरी नहीं समझा गया। सावल ने उनके रवैये समेत हर चीज़ का बगौर जायजा लिया और दिल में पक्का इरादा किया कि बहुत जल्द वो कोई दूसरा मकान देखकर वहाँ शिफ्ट होगा। ऐसी जगह रहने का क्या फ़ायदा जहाँ रहकर पहले जैसी इज्जत ही न रहे। वो बिस्तर पर लेटा तो सर दर्द से फटा जा रहा था। अगले दिन वो सुबह नाश्ता किए बगैर ही घर से निकल गया।
वो जल्द से जल्द पैसे जमा करके कोई दूसरा किराए का घर ढूंढना चाहता था। तभी कुछ समझ नहीं आया तो वो अंधेरे सबके जागने से पहले ही काम पर निकल गया। नाश्ते के बाद सावल की गैर मौजूदगी में नूरीन की माँ ने उसे ऐसा आड़े हाथों लिया कि उसके होश ठिकाने आ गए। किसने कहा था मुंह उठाकर शोहर और बेटी को लेकर यहाँ आ जा? हमारी अपनी जिम्मेदारियां कम है जो तुम लोग भी आकर सर पर सवार हो गए हो। नूरीन को माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो माँ जिसके मशवरों पर चलकर इस हाल को वो पहुंची थी, ये नहीं, माँ ने उसके जिम्मे आधे घर के काम भी लगा दिए। मैके के आधे घर के काम भी उसके पूरे घर के कामों से दुगने थे। ऊपर से उसकी अम्मी को उसका किया कोई काम पसंद नहीं आता था। हर काम में ऐपजोई करती थी और उसकी बेटी को वहाँ कोई न संभालता था। वो अलग से रो रो कर नूरीन का दिमाग खराब करती। रात को सावल ओवर टाइम लगाकर घर वापस आता तो नूरीन अपने घर वालों का बुरा रवैया उससे बिल्कुल जाहिर नहीं करती थी और चेहरे पर झूठी हंसी से जाकर हालात को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश करती। मगर सावल कोई दूध पीता बच्चा या बेवकूफ़ आदमी नहीं था जो कुछ समझ नहीं पाता। इतने सालों में वो नूरीन की रग रग से अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। उनकी बेटी हीरा बार बार माहौल के बदलाव की वजह से बीमार रहने लगी। सावल उसे डॉक्टर के पास ले गया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। हीरा के हर वक्त रोने की वजह से सब घर वाले परेशान होते और सावल के काम पर जाने की देर होती कि नूरीन पर चढ़ दौड़ते और उसे अच्छी खासी सुनाकर दिल का बोझ हल्का करते। एक रोज़ शाम के वक्त सावल का दिल बेटी के लिए तड़पा और वो ओवर टाइम लगाने का ख्याल दिल से निकाल कर जल्दी से घर के लिए उठ खड़ा हुआ। वो घर के सामने पहुंचा तो दरवाज़ा खुला देखकर अंदर चला गया। कमरे से सबके ऊंचा बोलने की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया। अम्मी, तुम्हारा ही कहना था कि घर में हुक्मरानी होनी चाहिए। उसी हुक्मरानी को पाने के लिए मैंने सावल से अलग घर का मुतालबा किया था। अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने ही तो कहा था कि सावल की सारी कमाई पर मेरा हक है और मुझे किसी भी तरह से उसे अपने कब्जे में करना चाहिए। मुझे क्या पता था कि जिस कमाई के तुम मुझे सुनहरी सपने दिखा रही हो वो 15 दिन भी बड़ी मुश्किल से चलती है। पैसे बचाकर शॉपिंग करना तो दूर की बात है, बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती। वो तो सावल की अम्मा की हिम्मत और मेहनत थी जो मैंने इतना वक्त बेफिक्री और सुकून का गुजार लिया। बस कर दे नूरी, साफ कह दे कि मैं माँ नहीं तेरी दुश्मन हूँ। तेरी और वो सावल की माँ ही तेरी इतनी सगी थी तो क्यों मुँह उठाकर आ गई यहाँ? किराए पर रहने की औकात नहीं थी तो वहीं ससुराल में रह लेती सुकून से। यूं आकर यहाँ हमारी नाक में क्यों दम कर दिया? चली जाती वहीं उस नेक बीबी के पास। एक तो तूने यहाँ रहना भी, ऊपर से रोज रोज तमाशे भी लगाने। माँ ने नागवारी से कहा तो सामने नूरी कौन सा चुप रहने वाली थी। तड़क कर बोली, मत भूल अम्मा, तेरे ही मशवरों पर अमल करके मैं ये वक्त देख रही हूँ। हर दूसरे दिन तू मेरे घर पहुँच कर उल्टी पट्टियाँ पढ़ाया करती थी, तेरे भले के लिए ही समझाती थी। और मैंने कब कहा था कि मेरे घर आकर रह लेना? मैंने तो अच्छे मशवरे दिए थे तुझे, ये थोड़ी कहा था कि मेरी कही बातों पर आंखें बंद करके अमल कर। उनका मुबासा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नूरीन के बहन भाई मुतमईन से उस कमरे में टीवी देख रहे थे, यानी उनके लिए ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसी लड़ाई उन माँ बेटी की रोज़ की कहानी बन चुकी थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है नूरीन, मेरे साथ अपने घर वापस चलो। मैं खुद अम्मा से माफ़ी मांगूंगा, देख लेना हमें वो गले लगा लेंगी। अपने खैर खाओं की असलियत तो तुम्हारे सामने खुल ही गई है। नूरीन शर्मिंदा सी खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती उसकी अम्मी बोल पड़ी, हाँ हाँ निकलो यहाँ से, अपना रास्ता नापो। एक तो बगैर किराया दिए रह रहे हो, खा रहे हो और हम पर ही उड़ा रहे हो। वाह भाई वाह, बाज आई तुम्हें ऐसी बेटी दामाद की मोहब्बत से। इस तरह जलील होकर उनके होश ठिकाने आए और उसी वक्त वो दोनों बेटी को गोद में उठाए वहां से निकल गए। हवाएं चल रही थी, जाती सर्दियां अपना रंग दिखा रही थी। ऐसे में अम्मा सकीना रात का खाना बराए नाम खाकर इशा की नमाज पढ़ती और उसके बाद लेटती तो फिर सुबह ही बिस्तर से उठती। उस रोज़ भी वो गोश्त के पतले से शोरबे में रोटी भिगोकर खाने के बाद इशा की नमाज पढ़कर जैसे ही सलाम फेर कर हटी, दरवाज़ा बजने लगा। इस वक्त कौन आ गया? वो सोचते हुए घुटनों पर हाथ रखे हाय हाय करती उठी और बाहर की जानिब चल दी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अपने सामने सावल, नूरीन और हीरा को मौजूद पाकर उसे पहले तो अपनी नज़रों पर यकीन ही नहीं आया और जब यकीन आया तो अपने सीने पर हाथ रखकर तड़प कर रोने लगी। नूरीन और सावल ने आगे बढ़कर माँ को थामा और अपने सहारे अंदर ले जाकर बिठा दिया
और अम्मा सकीना के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। वो दोनों अम्मा सकीना के साय में वापस आकर खुद को बड़ा पुरसुकून महसूस कर रहे थे। तेरे साय से घर में बरकत है माँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो तेरे वजूद की ठंडी छाया छोड़कर तपती धूप में चली गई। नूरीन सकीना के घुटनों पर सर रख के रो रही थी। अब हम हमेशा यहीं रहेंगे और कभी घर छोड़ने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो प्यार और एहसास इस घर में है दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है माँ। सावल ने भी दिल से इकरार किया तो अम्मा सकीना को ऐसे महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया की दौलत उसकी झोली में डाल दी गई हो। उसने उन दोनों को गले लगाकर पोती को गोद में उठाया, जो दादी की गोद में जाकर खुश हो रही थी। बहुत दिन बाद आज उन सबको पुरसुकून और गहरी नींद आई थी। अगली सुबह नूरीन ने उठकर नाश्ता बनाया था और दस्तरखान बिछाकर सबसे पहले अम्मा को बिठाया और अपने हाथ से देसी घी का पराठा और नमकीन लस्सी का गिलास सास को मुस्कुराकर बड़ी आजिज़ी से पेश किया। सावल ने बीवी को देखकर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था, जिसे ठोकर खाने के बाद ही सही मगर अक्ल आ ही गई थी। और अब घर वापस आकर उसके हर अंदाज से इत्मीनान छलक रहा था। ऐसे लगता कि वो अपने घर की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई है और आइंदा वो अपनी गलतियों को हरगिज़ नहीं दोहराएगी, क्योंकि ज़िंदगी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका बार बार नहीं देती और ना ही अम्मा सकीना जैसे मेहरबान चेहरे बार बार गले लगाने और सब भुलाकर मोहब्बत करने के लिए मौजूद होते हैं।